Hello students, today I am going to talk about mutation and its types. So let's start. What is mutation? Mutation is any sudden change occurring in hereditary material or any sudden change occurring in genetic material is called mutation. Genetic material could be DNA or RNA. The word mutation was very first time used by Hugo de Vries in 1901. Although DNA is highly specific or highly stable molecule that replicates with amazing accuracy, still there is possibility of some replication error which results into mutation. तो ये जो म्यूटेशन है वो डीएनए रेप्लिकेशन के समय अराइज हो सकता है. म्यूटेशन कुड बी हार्मफुल, बेनिफिशियल और न्यूट्रल. तो ये कैसे हार्मफुल हो सकते हैं या कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं या कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं, I'll tell you in the subsequent section of this slide. Now coming to types of mutation. म्यूटेशन के दो टाइप्स हैं, एक होता है जीन म्यूटेशन और दूसरा होता है क्रोमोसोम म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन could be due to replacement of one nucleotide by another, or it could be due to addition or deletion of nucleotide. Now coming to chromosome mutation. Chromosome mutation could result from change in the number of chromosomes or change in the structure of a chromosome. तो ये जीन म्यूटेशन के क्या टाइप्स हैं, क्रोमोसोम म्यूटेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, ये कैसे होते हैं, वो आपको मैं आगे की स्लाइड्स में डिटेल में बताऊंगी. Coming to chromosome mutation, there are three types of chromosome mutation. One is deletion, second is insertion, and third one is inversion. As the name suggests, deletion, it means some of the part of chromosome gets deleted. So here you can see in this picture, here the fragment C2D. C2D, this fragment of the chromosome got deleted due to some reason and it resulted into a mutated chromosome. Here you can see in this there is absence of section C2D. Here this orange color section is absent in this particular chromosome. So it is called deletion type of chromosome mutation. Now coming to insertion. Here you can see this part D to C. This part it get breaks and then it gets duplicate and the duplicate part get attached again here. So here you can see this B to C part got detached, it got replicated again and it got inserted into this chromosome. So here you can see B to C and B to C. Here this is duplication of the part B to C. So it is called insertion chromosome mutation. In this third part or third type inversion, you can see as the name suggests inversion, it means some fragment or some part of chromosome get inverted. How? You can see in this picture. Here this is B fragment of chromosome, here it is D fragment of chromosome. So in this mutation was what has happened, this D fragment got inverted and it got integrated here, and this part B segment got inverted and it got inserted here. So you can see here it is D part and here it is B part. Earlier B part was here and D part was here, but after mutation or after inversion this D part is here and B part is here.
So this is all about chromosome mutation. Now coming to gene mutation. A gene mutation is defined as an alteration in the sequence of nucleotides in DNA. It means there will be alteration, either it may be deletion or insertion of any base pair present in the nucleotide. There are two types of gene mutation, point mutation and frame shift mutation. Point mutation is again of two subtypes, silent mutation and nonsense mutation. This frame shift mutation is also of two subtypes, insertion and deletion. I'll explain this point mutation and frame shift mutation and its types one by one in coming section of the slide. Point mutation. Point mutations are the most common type of gene mutation. There is change in single nucleotide base pair. It means जो DNA का जो बेस पेयर होता है उसमें किसी एक सिंगल बेस का चेंज हो जाना, उसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डीएनए के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन होना उसको कह रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के दो टाइप्स हैं, साइलेंट म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन। वन बाय वन इसको हम देखेंगे। साइलेंट म्यूटेशन, the change in one codon for an amino acid into another codon for the same amino acid। मतलब क्या है, मैं इसको आपको पिक्चर से बताती हूँ साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है। साइलेंट म्यूटेशन में यहाँ पर देखिए ये कोडॉन है, ये कोडॉन का ये तीन इसके अलग अलग बेसिस हैं। ATG it codes for methionine, GAA codes for glutamic acid, CGA for alanine and CGT for glycine। तो इसमें ये जो A देख रहे हैं आप, ये A इस बेस में यहाँ पर म्यूटेशन होगा एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, G में। लेकिन GAA codes for glutamic acid and GAG also codes for glutamic acid। मतलब एक कोडॉन का जो अमीनो एसिड था उस कोडॉन में चेंज होने के बाद भी जो अमीनो एसिड बनेगा वो सेम अमीनो एसिड होगा। तो इस टाइप के म्यूटेशन को कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। अब यहाँ जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए। द चेंज इन वन कोडॉन फॉर एन अमीनो एसिड into another codon for the same amino acid. This codon will change in such a way that it will result into the formation of, or it will result into the translation of same amino acid. It means there will not be any change in the sequence of amino acid, so it is called silent mutation. अब हम बात करते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन की। What is nonsense mutation? The codon for one amino acid is changed into a translation termination codon। It means यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल बेस पेयर में इन कोडॉन के सिंगल बेस में चेंज होने के कारण से वो जो नया कोडॉन बनेगा वो कौन सा कोडॉन हो जाएगा, टर्मिनेशन कोडॉन बन जाएगा या स्टॉप कोडॉन बन जाएगा। कैसे, देखिए इस फिगर में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यहाँ पर CAG कोड्स फॉर GLN, CAG GLN, GLN 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 GLN। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो CAG है, यहाँ पर ये जो C है वो चेंज हो गया है किससे, थाइमिन से। साइटोसिन जो यहाँ पर था वो भी चेंज हो गया है थाइमिन से, और ये कोडॉन क्या बन गया, TAG। TAG जो बन गया, दिस TAG इज अ टर्मिनेशन कोडॉन। अब ये टर्मिनेशन कोडॉन है, मतलब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है उसको, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को या कोडॉन के अमीनो एसिड में जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को ये स्टॉप कर देगा। और ये इनकरेक्ट सीक्वेंस होने के कारण से यहाँ पर जो प्रोटीन होगा उसका शॉर्टनिंग हो जाएगा। ये प्रोटीन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो इसको कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। Now coming to frame shift mutation.
This type of mutation is caused by addition or deletion of base pair or base pairs in the DNA, resulting into the unnatural reading frame from the position of the mutation to the end of the gene. इसका मतलब क्या है, डीएनए के जो बेस पेयर्स हैं उस बेस पेयर में किसी एक बेस पेयर का या एक से ज्यादा बेस पेयर का एडिशन या डिलीशन होगा, जिसके कारण से जो डीएनए का जो फ्रेम है उसको रीड करने के लिए जो है उसकी जो रीडिंग है वो शिफ्ट हो जाएगी। कैसे शिफ्ट हो जाएगी, कैसे ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा है, मैं इस डेफिनेशन से क्या बताना चाहती हूँ आपको, मैं ये इसको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कमिंग स्लाइड में। पर उसके पहले अ रीडिंग फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिस। तो ये रीडिंग फ्रेम्स क्या है? रीडिंग फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिस, each code for an amino acid. A frame shift mutation shifts the grouping of this bases and changes the code for amino acid. How it changes the code for amino acid, I'm going to tell you in further section. And this change in the code for amino acid results into the formation of non-functional or faulty protein. How? I'll explain you through this. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंसर्शन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और दूसरा होता है डिलीशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किसी बेस पेयर का या बेस पेयर का किसी डीएनए में इंसर्ट होना या वहां से डिलीट हो जाना, वो क्या करता है, ये जो रीडिंग फ्रेम है उसको चेंज करता है। तो ये रीडिंग फ्रेम क्या है वो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। रीडिंग फ्रेम मतलब ये जो C80 है, एक कोडॉन, 3 बेसिस के एक कोडॉन, C80 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 C80, जो तीन ये एक एक इन कोडॉन्स के जो फ्रेम है इन्हीं को कह रहे हैं रीडिंग फ्रेम। हम देखिए यहाँ पर इंसर्शन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये है ओरिजिनल डीएनए कोड फॉर एन अमीनो एसिड सीक्वेंस। पूरा एंटायर डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो कोड करता है किसको, हिस्टीडीन 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 या HIS HIS, इसको ये कोड करता है। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पे लिखा है CAT। तो C के जस्ट पहले यहाँ पर अगर किसी एक बेस का इंसर्शन हो जाता है, सपोज A, यहाँ पे लिखा है इंसर्शन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। सपोज यहाँ पर CAT के जस्ट पहले, यहाँ C के जस्ट पहले अगर किसी एक न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन हो जाता है, तो अब ये रीडिंग फ्रेम पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे? अब ये हो जाएगा, इसके पहले A आ गया है, यहाँ पर A आ गया है, तो अब इस रीडिंग फ्रेम कैसे हो जाएगा, ACA TCA TCA TCA। मतलब यहाँ पर ACA जो कोडॉन है वो किसको कोड करता है, THR को। TCA जो है वो SER को कोड करता है, फिर यहाँ पे TCA SER को कोड करता है और यहाँ पर SER। तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के इंसर्ट होने के कारण यहाँ पर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस था वो इनकरेक्ट हो गया या वो चेंज हो गया, और क्या बन गया, इनकरेक्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस विच में प्रोड्यूस अ माल फंक्शनिंग प्रोटीन। तो पूरी अमीनो एसिड का चेन डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पर कोई एक दूसरा अमीनो एसिड आकर के जुड़ गया, दूसरा अमीनो एसिड आकर के जुड़ा, इसीलिए ये जो अमीनो एसिड का चेन है वो कोई फॉल्टी प्रोटीन को रिजल्ट करेगा। तो इसको कहते हैं इंसर्शनल या इंसर्शन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहाँ पर किसी एक न्यूक्लियोटाइड के इंसर्ट होने के कारण रीडिंग फ्रेम में चेंज हो गया और उस रीडिंग फ्रेम में चेंज होने के कारण से फॉल्टी प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। वैसे ही यहाँ पर ये डिलीशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। इस फिगर में देखिए CAT HIS HIS, इन अमीनो एसिड को ये कोडॉन्स कोड करते हैं। सपोज इस पोजीशन पर देखिए यहाँ पर CAT, यहाँ पर लिखा हुआ है CAT। इस पोजीशन से अगर
डिलीशन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन कर दिए। डिलीट, ये ए जो है उसको अगर डिलीट कर दिए, यहां से इसको हटा दिए, तो ये क्या बन जाएगा, सी टी सी। ये ए हट गया है, ये हट गया, तो अब रीडिंग कहां से होगी, सी टी और सी। यहाँ पर देखो, सी टी सी, ए टी सी, ए टी सी, ए टी सी। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के डिलीशन के कारण से ये जो पूरा रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो गया, और उसके कारण से यहाँ पर जो अमीनो एसिड ये इन नए कोडॉन्स ने कोड किए हैं वो भी चेंज हो गए, और इस अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज होने के कारण या इनकरेक्ट अमीनो एसिड के सीक्वेंस होने के कारण से यहाँ पर माल फंक्शनिंग प्रोटीन या फॉल्टी प्रोटीन बनेगा। तो इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। Now we come to molecular mechanism of mutation. म्यूटेशन दो मैकेनिज्म्स के थ्रू हो सकता है, एक हो सकता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरा हो सकता है इंड्यूस म्यूटेशन। तो क्या मैकेनिज्म है, क्यों इसको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कह रहे हैं और इसको क्यों इंड्यूस म्यूटेशन कह रहे हैं? देखिए, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस आर दोज व्हिच अराइज नेचुरली, नॉट थ्रू द एक्शन ऑफ एनी म्यूटाजेनिक एजेंट. They may arise through errors in DNA replication, spontaneous alteration of nucleotide within an existing DNA molecule. इसका मतलब क्या है? Spontaneous mutation एक ऐसा म्यूटेशन है या एक ऐसा म्यूटेशन मैकेनिज्म है जिसमें कि म्यूटेशन नेचुरली अराइज होते हैं, इसमें कोई भी म्यूटाजेनिक एजेंट काम नहीं करता है, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो उस रेप्लिकेशन के ड्यूरेशन पर कोई एरर आ जाता है डीएनए रेप्लिकेशन में। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के समय पर जब बेस पेयरिंग हो रही होती है उस समय पर कोई मिस बेस पेयरिंग हो जाए तो उसके कारण से स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकता है, या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या spontaneous alteration of a nucleotide within an existing DNA molecule. जो existing DNA molecule है उसमें भी अगर किसी न्यूक्लियोटाइड का में कुछ चेंज हो गए या कुछ ऑल्टरेशन हो गया तो उससे भी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकता है या होता है। अब हम आते हैं इंड्यूस म्यूटेशन में। इंड्यूस म्यूटेशन मतलब ये ऐसे म्यूटेशन है जो किसी फिजिकल या केमिकल या किसी अदर म्यूटेजेंस के कारण से अराइज होते हैं। फिजिकल म्यूटेजेंस जैसे कि रेडिएशन, केमिकल म्यूटेजेंस जैसे कि कोई अल्काइलेटिंग एजेंट या इंटरकेलेटिंग एजेंट या बेस एनालॉग्स। तो आपने जो देखा होगा कि कैंसर्स के बारे में सुना होगा कि केमिकल के कारण से कैंसर्स होते हैं या कार्सिनोजेंस होते हैं या रेडिएशन के कारण कैंसर होता है। तो ये कैंसर क्या है? कैंसर मतलब ये कैसे होता है? किसी डीएनए में कोई बेस पेयर में कुछ अल्टरेशन हो जाता है, कोई चेंज हो जाता है जिसके कारण से वो डीएनए म्यूटेट हो जाता है, फॉल्टी प्रोटीन बनाता है, फॉल्टी सिग्नल पहुंचाता है, और उस फॉल्टी सिग्नल के कारण से सेल्स का जो है रिपीटेड प्रोलिफरेशन या उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है जिसके कारण से कैंसर कॉज होता है। इफेक्ट्स ऑफ जीन म्यूटेशन, इसके तीन इफेक्ट्स होते हैं। वेरी फर्स्ट स्लाइड, इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड आई हैड टोल्ड यू बेनिफिशियल हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। सो हाउ बेनिफिशियल? if it produce new version of a protein essential for evolution, enhance the survival and reproductive success, turn off harmful genes. If because of mutation any harmful gene is turned off, then it is beneficial kind of mutation. How it is gene mutation can be harmful? If it produces malfunction protein, or if it is lethal to life or harmful to life, or if it sometimes stops the development of fetus, if it causes any genetic disorder like cancer. अभी मैंने आपको बताया। न्यूट्रल क्या है? If not significantly harm or benefit the body, अगर उस म्यूटेशन से कोई सिग्निफिकेंट हार्म या बेनिफिट नहीं होता है बॉडी को तो फिर उसको कहते हैं न्यूट्रल इफेक्ट।
This is all about mutation and its type. Thank you.